یہیں کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو گاؤں کے بچوں نے فیض حاصل کیا ہے۔ محمد سمیر ابن محمد مرتضی کڈا، محمد احکام، محمد سرفراز کڈا، محمد ہم نواز کڈا، یہ سرفراز ہی کے بچے، دو بچے ان کے حافظ ہوئے۔ السلام علیکم سامعین، 3 شعبان المعظم ہے، 23 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے 28 حفاظ کی دستار بندی، ادارے سے 3 بچوں نے بھی قرآن کریم حفظ کیا۔ خبر تفصیل سے سنیے۔ مغربی یو پی کے ضلع مظفر نگر کے گاؤں کھوڑا کے مدرسہ اسلامیہ عربیہ یاسینیہ سراج العلوم میں 28 حفاظ کرام کی دستار بندی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ ادارے میں اس سال 3 بچوں نے بھی قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ اس اجلاس میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے نائب محتم مفتی راشد اعظمی، مفتی اعجاز، مولانا زبیر الرحمانی، مولانا عقل الرحمان اور مفتی رئیس نے بھی بیان کیا ہے۔ مفتی رئیس کا مکمل ویڈیو بیان ہم آخر میں پیش کریں گے۔ اجلاس میں حافظ ابوذر، حافظ محمد سفیان، حافظ شاہنواز سمیت 28 حافظوں کی دستار بندی ہوئی ہے۔ اس طرح 3 حافظ طالبات رقیہ پروین، زینب دختر شمشاد اور زینب دختر عرفان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ نظامت کے فرائض مفتی اطہر نے انجام دیے ہیں۔ ادارے کے محتمم قاری محمد جعفر نے سادگی سے نکاح کرنے کی تجویز کے ساتھ ساتھ حاضرین کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ خصوصی شرکا میں حافظ انتظار، مولانا اقبال، مولانا صداقت، مفتی مدثر، مفتی عثمان، سرتاج احمد، سعید الزماں، مصباح الدین، پردھان تنویر، پردھان اویس، مفتی نوشاد، مفتی عثمان، مولانا صداقت، قاری فہیم، مولانا راشد مفتاحی، مولانا عبدالقادر، حافظ شعیب، قاری مظاہر، قاری آصف محمد، قاری مدثر وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ موقع کی تصاویر اور ویڈیوز بھی پیش خدمت۔ یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے پکڑ لیا حسد میں، حسد تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکے، قومیوں کے زیادہ ہو، جیسا کام قاری جعفر صاحب اور ان کی ٹیم، مولانا مدثر اور مفتی عثمان، یہ پوری ٹیم جو لے کے چل رہی ہے نا، ایسے لوگوں کو یہ تو بچے ہوئے 4 دیواری موٹی موٹی کر رکھی انہوں نے 10 انچ کی، ورنہ ایسے لوگوں کو نظر بھی لگتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیا جب ان کے بھائیوں کو حسد ہو گیا، بھائیوں کو، سگے بھائیوں کو، کہ یار یہ تو ابا جی کی نظر چڑھ گئے، تو ان سے زیادہ بڑا آدمی کوئی نہیں بنے گا، سب سے چھوٹا اور سب سے زیادہ قدامہ بن جائے گا، لہٰذا اس کا پہلے انتظام کرو۔ سگے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو حسد کے دائرے میں گھیر لیا، مشورہ کر لیا۔ آپ نے سنا ہی ہوگا واقعہ کہ سارے بھائیوں نے مل کے کہا کیا کرے، کسی نے کہا اس کو زہر دے دو، اس نے کہا نہ بھائی، کسی نے بھائی ہے یار زہر نہ دو، کسی نے کہا یار ایسا کرو اس کے ہاتھ پیر توڑ دو، اس نے کہا بھائی ابا روئیں گے اور سارا شہر تمہیں کیا کہے گا تیرا۔ الگ الگ مشورے شیطان دلوانا بھائیوں سے۔ ایک بھائی بڑا اچھا تھا، اس نے کہا بھائی تم اسے مارو تو ہونا، ایک کام کرو سے کوئی لے جاؤ، تمہاری نظروں سے بھی اوجھل ہو جائے گا، اگر گر جائے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب بھائی ابا کو کیا کہو گے؟ اب پٹک دے انتظام ہم بتاتے ہیں۔ شیطان پٹک سے اس کے سر پر سوار ہوا، کہا ایک کام کرو ابا سے لے لے کسی طرح اس کو، یوسف علیہ السلام کو۔ ابا بوڑھے چاند کی طرح، سورج سے بھی زیادہ، ستاروں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ بھائیوں نے کہا ابا ہم لوگ شکار کو جاتے ہیں، وہاں کھیلتے ہیں، وہاں مزہ آتا ہے، یوسف کو بھی بھیج دو۔ کہا نہ بھائی بڑھاپے میں میرا دل نہیں چاہتا، میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں بڑا اچھا لگتا ہے، میرا دل سکون میں رہتا، میں نہیں بھیجتا۔ اب ابا ہم کتنے قداور لوگ ہیں، بھاری بھرکم لوگ ہیں، طاقت ہے، 11 ہے ہم لوگ، ہم سے کیسے خطرہ؟ مطلب ہی نہیں ہوتا اگر کوئی بھیڑیا یا کوئی چیز، بس شیطان نے وہی بات پکڑ لی۔ ایک دن پٹا وٹا کے باپ کو لے گئے جنگل میں، اور کسی جانور کے خون میں کپڑا ان کا رنگا اور کہا بھائی یہ ٹھیک ہے، ابا کو کہہ دیں گے۔ بھیڑیا کھا گیا، بتوری کوشش کری، پکڑ میں ہی نہیں آیا، سب کھا گیا بھیڑیا، خون میں رنگا کرتا اور وہ رکھ لیا تھیلی میں، اور یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ کے کوئے میں، ہاتھ پیر باندھ دیے اللہ کے نبی کے۔ عمر چھوٹی تھی، اللہ کا نظام، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا انتظام کرتا ہے، فوراً اللہ کے آدیش آئے۔ یہ کچھ انبیاء، کچھ لوگ ہیں جن کے ایمرجنسی آدیش اترے۔ ابراہیم علیہ السلام ایمرجنسی آدیش اترا ان کے لیے، یونس علیہ السلام ایمرجنسی آدیش اترا ان کے لیے، یوسف علیہ السلام ایمرجنسی آدیش آیا، فوراً بھیجا گیا فرشتے کو، جاؤ میرے یوسف کو کنویں کے اندر فوراً جو ہے ہاتھے پر لے لو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں گرنے سے پہلے یوسف کو ہاتھوں پر لے لیا۔
फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से निकले, किसी तरह काफले में आवाज आई, काफला वो लंबा वाकया है, काफले में यार बड़ा खूबसूरत नौजवान, बड़ा समझदार लग रहा है, ऐसा हसीन, जो देखता है उसके दिल की तरफ खींचा चला जाता है। गर्ज ये जो मुझे बात बतानी है, वो आखिर में करते करते जब मिस्र पहुंच गए दिखते दिखाते, तो मिस्र के बादशाह की बीवी, साहिब मिस्र की बीवी, उनके ऊपर फरेफ्ता हो गई, जिसका नाम था जुलेखा। वो भी बेकाबू हो गई। अल्लाह का निजाम था, उसके कब्जे में नहीं था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से बच सके। फरेफ्ता हो गई, आशिक हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत देने लगे। और नौजवानों सुनो, किसकी ऐसी मुअज़्ज़ज़ खातून, ऐसी मुकर्रम खातून, ऐसे बड़े घराने की खातून कैसी होगी, कैसी खुशबू लगाती होगी, कैसी हसीन व जमील होगी, और दावत दे रही है, दावत दे रही है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि इसका दिल मेरे ऊपर आ गया है और ये गुनाह के 100% मुझे चांसेस में मुब्तला करने की नियत कर बैठी है, और मुझे ये काम नहीं करना, क्योंकि जब अल्लाह का डर होता है, अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह की रजा, अल्लाह का दिल में प्यार होता है, फिर इंसान के सामने चाहे कितना भी करीब मौका हो, चाहे जैसे हालात हो, रब्बे काबा की कसम, वो नौजवान तारीख में भरे पड़े हैं जिन्होंने अल्लाह के खौफ से, गुनाह से बचे, न बचने की जगह इम्पॉसिबिलिटी को पॉसिबिलिटी में तब्दील किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उन्हीं लोगों में से है कि कोई बचने का चांस नहीं था, नामुमकिन था, महान था जुलेखा की शान से बचना। चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उनके सामने जुलेखा ने बहुत कोशिश के बावजूद उन्होंने गुनाह करने से इनकार कर दिया। हालांकि यूसुफ बगैर शादीशुदा थे, नौजवान थे, लेकिन मौका भी था, तन्हाई भी थी। लोगों, ये है इस्लाम, ये है ईमान। नौजवान बच्चों और फेसबुक पर बेइज्जती रचाने वालों और गर्लफ्रेंड बनाने वालों और लोगों जो व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगियों को सियाह कर रहे हैं, उनको अपने नबियों की, अपने बुजुर्गों की यादें ताजा रखनी चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया और बिल्कुल इनकार कर दिया। उसके बाद जुलेखा ने दो रास्ते रख दिए, कहा सुनो, या तो तुम जेल जाओगे या तुम मेरे साथ मुंह काला करोगे, मेरी बात मानोगे, यानी जिना करोगे। दो ही रास्ते हैं, इन दोनों में से छांट लो, तुम कौन से रास्ते को पसंद करोगे, ये बात मुझे बतानी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ फरमाई, तो बता क्या कहा, रब्बि अहब्बुस्सिज्न इलैया मिम्मा यदऊननी, ऐ मेरे रब, मैंने तो छांट लिया, कैद छांट ली, ऐ मेरे अल्लाह, ये गुनाह नहीं करूंगा, जिना नहीं करूंगा, इस औरत की तरफ नहीं जाऊंगा, चाहे जितनी हसीन हो, ऐ मेरे अल्लाह, इससे बेहतर ये है कि मुझे कैद की मुश्किलात में डाल दे। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेक लोगों की दुआएं फौरन कबूल होती हैं, फौरन दुआ कबूल हो गई। उलमा ने, मुबस्सिरीन ने, मुफक्किरीन ने बात लिखी है, मुबस्सिरीन ने तफसीरा किया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर ये कहते कि अल्लाह न मैं कैद जाना चाहता और न मैं औरत की बात मानना चाहता, मुझे राहे सलामती अता फरमा, तो उम्मीद से बता, ईमानदारी से उनको राहे सलामती मिलती कि नहीं मिलती? मिलती, जरूर मिलती। अल्लाह ने कहा अच्छा, मगर आप सीखना ही नहीं, मेरे रब, मैं तो जेल पसंद करता हूं, लिहाजा मुझे जेल में डाल दे, मगर गुनाह नहीं करूंगा। इससे पता चला कि समाज की बुराइयां, जिना, शराब, जैसी बुराइयां हो, उनके बदले में इंसान हराम रोटी के बदले में भूखा मर जाए, ज्यादा बेहतर है। गुनाह के नतीजे और पादाश से बजाय इंसान कैद में चला जाए, ज्यादा बेहतर है। लोगों, ये तरीका कार है सालिहीन और अंबिया और नेक लोगों का। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि लोगों को इस बात से मसला निकाला गया कि जब कोई मुसीबत आए, बाद लोग कह देते ना, बच्चा बीमार हुआ, माँ कह देती है, ए अल्लाह तो मेरे बच्चे को बचाने मुझे उठा ले, कहती नहीं कहती? जब बच्चे को तड़पते हुए कर रहा थी, माँ देखती है तो
तो यूं कहती है अल्लाह तो इनसे अपने शोहर को देखती है, कर्रा रहा है, तड़प रहा है, हाँ, तो बेचारी मोहब्बत में, शफकत में और जोश में कह देती है अल्लाह मुझे उठा ले। कभी कभी दादी कह देती है बुढ़ापे में अल्लाह मेरे बच्चे को मत तड़पा, मुझे उठा ले। कभी नहीं कहना चाहिए, यूं कहना चाहिए ए अल्लाह मुझे भी उम्र नसीब फरमा, मेरे बच्चे को भी सेहत अता फरमा, ताकि मैं इनकी बहारें देख लूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस बात से उलमा ने मना किया, यूं कहना कि भाई हम मर जाएंगे या हम तो मर सकते हैं, नहीं भाई अल्लाह से खैर मांगो, आफियत मांगो। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस बात ने हमें इस तरह मुतवज्जह किया कि हम अल्लाह से खैर मांगे, कोई गलत चीज ना मांगे, उसका बल्कि जिक्र भी ना करें। इसलिए कभी और को ये नहीं कहना चाहिए बुखार अल्लाह मुझे चढ़ा दे, मेरे बच्चे को ठीक कर दे, बल्कि यूं कहे अल्लाह मुझे भी ठीक है, मेरे बच्चे को सेहत अता फरमा। माँ की दुआएं कबूल होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? तो हमारे कारी जाफर साहब वाकई वो सर के मोहब्बत और जोश के हालात में आपको अपने दिल और कलेजा निकाल के दिखाने की कोशिश करते हैं। और सच पूछो मदरसे के लिए इस आदमी को मैंने 12 देखा और आजमाया, सफरों में धक्के खाता फिरता है और रात दिन इस मदरसे के लिए आज आपके सामने ये 28 कैबिनेट बैठी है। वो अल्लाह की कसम ये इतना बड़ा जखीरा है, इनके माँ बाप, इनके असातिज़ा कारी जाफर साहब इससे ज्यादा बड़ा जखीरा हो नहीं सकता। कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, अल्लाहु अकबर कबीरा। और खुदा की कसम यारो, कुरान ने कहा है, अपने नबी को ऐलान कराया, कह दीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो दौर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये कुरान अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का फजल है, खास अल्लाह का इनाम है। कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सुनो लोगों, ये कहा जिसने कुरान पढ़ा, जिसने कुरान पढ़ाया, उनको चाहिए कि वो खुश हो जाए, इतराए। शायद मैंने ये नुक्ता पहले भी बयान किया था किसी साल। कुरान अज़ीम की आयत का मतलब ये है, ये बार बार बयान करने की आयत है कि फरहा या फरिहा यफरहू, जिस बात से अरबी में इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी खुशी को कहते हैं जिसमें सीना फूल जाए, आदमी का सीना चौड़ा हो जाए। आपने देखा होगा, यानी जब आदमी का सीना किसी खुशी से फूलता है, चौड़ा होता है, उसको कहते हैं हमारे समाज, हमारे देहात में, चूंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, देहाती मोड में हूं, तो उसको कहते हैं इतराना। भाई बड़ा इतरा रहा है, इतराना बोलते कुछ और बोलते हैं, है ना, इतराना बोलते हैं उसको। जब आदमी का जरा सेहत अच्छी हो, जरा पैसे अच्छे हो, तो यूं करके चलता है। देखो यूं हाथ में मोबाइल हो, यूं करके चलता है। इसको ये सीना तभी तो चौड़ा हो रहा है, बस फरिया या फरो तभी तो खुशी हो रही है। अगर यूं करके चलेगा यूं तो खुशी ना होगी है। अगर यूं मोटे मोड़ के तेरा मिर्ची निकालते करके यूं चलेगा, यूं करके, अब सीना फूल रहा है, मुझे देखो ये इसका मतलब यूं चल रहा है, ये सीना फूल रहा है, इसको कहते हैं फरह। कुरान ने ऐसी खुशी को मना फरमाया है, किसके लिए? ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन। कुरान ने कहा है इतरा मत, इसका तर्जुमा मैंने क्या किया तुम लोगों के लिए? इतरा मत। अल्लाह इतराने वालों को पसंद, बोलो ना भाई, पसंद नहीं करता। जो यूं चलते ना इनको तो जमीन खा जाती है। हाँ, तारीख ने बात कही है। हजरत जो है कुछ दिन वाकया बयान कर रहे थे कि रूस का कहीं का वाकया पुरानी तारीख में बनी इसराइल में, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी बड़ा सेहतमंद था, बड़ा जबरदस्त, 6.5-7 फीट का। उसको किसी ने कहा भाई तेरी गजब की सेहत है। उसने कहा हाँ, मेरी सेहत पर तो रब भी इतराता है। नाउज़ुबिल्लाह। क्या कहा? मेरी सेहत पर तो रब भी घमंड करता है। बस अल्लाह को ये बात बुरी लगी, पकड़ लिया, छोटा होना शुरू हो गया, छोटा आन के आन में टाइम नहीं लगा। होते देख रहे हो उनसे क्या हो गया, सुकड़ता जा रहा। हाँ, और लोगों तुम्हें यह अफसाना जरूर लगता होगा, इस फकीर ने ऐसे आदमी को अपनी हालत से देखा है। कान खोल के सुन लो, अतराफ और अकनाफ और खुदे के लोगों, मैंने ऐसे दीवार देखे जो 6.5-7 फुट के थे, और रब्बे काबा की कसम मैंने 7 साल के बच्चे की तरह उनका हुक्म और जिस्म देखा है। मैं एक दिन अपने देहरादून में कुछ मरीजों की मिलाद पुरसी करने गया हुआ था।
ज्यादा लंबी बात हुई, खुद की बता रहा, थ्योरी नहीं, अफसाने नहीं, प्रैक्टिकल जो मेरी आंखों ने देखा। इसलिए अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। इसलिए तुम्हें कुरान करता, इसलिए तुम्हें हदीस, इसलिए तुम्हें उलामा खुशामद करके खैर की तरफ बुलाते हैं। ये हमारा फरीजा है। मैं गया तो मैं एक मरीज को झाड़ने के बाद, उसको दम करने के बाद वापस चला तो एक खातून थी, बड़ी हसीन और जमील, मुझे लगता है 20 और 30 के दरमियान की होगी, 25 की और 26 की हो, 27 की हो। वो मुझे देखने लगी। मैंने सोचा कैसे देख रही होगी, फिर मैं थोड़ी देर ठटका, मगर वो उसकी निगाहें मेरे ऊपर ऐसी थी कि जैसे वो मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती हो। मैं रुका, मैं पीछे हटा, मैंने कहा बहन क्या बात है, तुम मुझे क्यों देख रही हो, कुछ कहना चाहती है? जैसे मैंने उसको यूं कहा, उसकी आंख से खुदा की कसम तब तक आंसू गिरने लगे, बारिश होने लगी। उसके अंदर जो जमा हुआ था वो फौरन उसकी आंखों के जरिए से सैलाब उमड़ पड़ा। मैंने उसके सर पे हाथ रखा और मैंने कहा घबराओ नहीं, बोलो क्या बात है। कहने लगी आपने उस मरीज को झाड़ा है, मैं बहुत देर से हिम्मत कर रही हूं कि इमाम साहब, वो तो मुझे जानती नहीं थी, कहा मैं इमाम साहब आपको साड़ी के आप इसको भी झाड़ दो। मैंने सोचा उसका बच्चा होगा जिसका जिस्म सिर्फ 4 से 5 साल के बच्चे की तरह था, पतले पतले, मेरे अंगूठे जितने उसके हाथ पैर हो रहे थे। अब सोचो क्या पोजीशन हुई होगी। ऐसा जिस्म मुश्किल से 15 से 20 किलो वजन होगा। मेरा अल्लाह जानता है, अल्लाह हिफाजत फरमाए कम। मैंने कहा कौन है? मैंने सोचा इसका बच्चा होगा। मुझसे कहने लगी मौलाना, जब मैंने झाड़ दिया, मैंने कहा कौन है? मुझसे हाथ जोड़ के कहने लगी मौलाना एक गुजारिश है आपसे, आप इसके लिए दुआ कर दो, या तो इसकी मौत आ जाए या अल्लाह इसको शहद दे के घर पहुंचा दे। मैंने कहा बेटा ऐसे क्यों कह रही हो? कौन है? रो के कहने लगी मेरा शौहर है। मैंने कहा कैसे हुआ इसको? उसने कहा कि मुफ्ती साहब आप जो इससे मरा हुआ जिस्म और 4-5 फीट और छोटे बच्चे की तरह इसका जिस्म महसूस कर रहे हैं, मैं इसकी बीवी हूं, मैं इसके साथ सिर्फ 3 साल रही हूं। 3 साल में 3 बेटियां पैदा हुई है। जब ये मुझे ब्याहने के लिए गया तो इसके यहां से ऐसे मोटे मोटे कलाइयां इतनी चोरी चोरी, इसको मेरी सहेलियों ने और मेरे खानदान की लड़कियों ने छत पे चढ़ चढ़ के देखा था। अखबार दामाद हो, नेता हो, दूल्हा हो तो ऐसा जैसा फर्मीना का हो कि मुफ्ती साहब मौलाना 6.5 फीट का था, लेकिन अल्लाह ने उसकी पकड़ करी। हाँ, इसलिए तो इन नबत शरब देकर नशदीद और बहुत बड़े भरने वालों और जमीनें खरीदने वालों और अपने घरों में पैसे लगा के उनको हमेशा हमेशा ताजगी का जन्नत का बनाने वालों सुनो। उसने कहा इसके अंगूठे में दर्द हुआ, यही कहा आपके बाजू का जाओ पूछ लेना, बरेली के प्रधान का लड़का जो उस वक्त प्रधान रहे होंगे, क्रो के कहने लगी मौलवी जी 500 बीघे जमीन थी, इसके अंगूठे में दर्द हुआ, अल्लाह ने पकड़ लिया, हाथ ने काम करना बंद कर दिया, फिर दूसरे हाथ में दर्द आ गया, जहां डॉक्टर फेल हो गए, दवाइयां फेल हो गई, दुआओं ने काम करना बंद कर दिया, दोनों हाथ शल हो गए। फिर उसके पैरों की तरफ, दूसरे पैर की तरफ, क्या मौलाना आज जिंदगी सांस के साथ ये मुर्दा लाश है, मैं इसको 27 महीने से यहाँ हॉस्पिटल में लेके पड़ी हुई हूँ। कितने महीने से? हाय 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 हाय, 27 महीने से। वो मुझे देख के कहने लगी इमाम साहब लोगों ने देख लिया, आना भी बंद कर दिया, बहनों ने आना बंद कर दिया, भाइयों ने आना बंद कर दिया। एक इसका बाप है बूढ़ा जिसने 500 बीघे जमीन इससे इलाज में खोली। भाई नाराज है कि 500 के इलाज में चली गई। एक मैं हूं रात दिन 27 महीने से एक कमरा लिया हुआ है, 10,000 रुपए महीना इसके कमरे के दे करके मैं पड़ी हुई हूं। मौलाना अब मेरी कुव्वत बर्दाश्त चलाते गई है, मुझे खुदा के वास्ते छुटकारा दिलवाइए या तो इसकी मौत हो जाए, सुहाग उजड़ जाए, मैं परेशान आ चुके हूं। और लोगों मेरे दिल पर चोट लगी, मेरी आंखों से आंसू आए,
मैंने हाथ उठा के दुआ की उसी के सामने, ए अल्लाह इस बच्ची पर रहम फरमा, अगर इसके हाथ साथ जिंदगी है, अगर इसकी हयात है, सांसें बाकी है, और मेरे रब तुझे इस बच्ची की आहट का वास्ता, तुझे इस बच्ची के आंसुओं के सैलाब का वास्ता, इसे सेहत अता फरमा या इससे मौत अता फरमा, ताकि ये बच्ची अपने घर सुकून से नमाज रोजा कर सके, बेपर्दगी से बच सके। तेरे नबी की गुलाम है बेटी, और रब की कसम तुम्हें यकीन आया ना आए, तीसरे दिन उस आदमी का तकरीबन इंतकाल हो गया। लोगों, मेरी आपसे ये कहना है, वो लोग खुश नसीब है जो इस कैबिनेट को कारी जाफर के साथ में मिल के कंधे पर मिला के, रब खादा की कसम ये इनके काम आएगा। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुमने बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान को पढ़ते हैं, जो कुरान को पढ़ाते हैं, जो कुरान के लिए सुबह उठते हैं, जो कुरान के लिए सुबह उठाते हैं, जो कुरान के लिए पैसे देते हैं, जो कुरान के लिए दीवारें खड़ी करते हैं, जो कुरान के लिए छत बनाते हैं। और रब की कसम वो दुनिया में भी रहमतों के मालिक है, अल्लाह के फजल के साहिबान में है, और कल कयामत के दिन उनके सरों पर ताज सजा दिए जाएंगे। कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। और रब ने देखो तो सही कितने प्यार से कहा, खुद देखे लोगों और मेरे के लोगों और छपा के लोगों, मैं नहीं कह रहा, तुम्हारा रब खालिक कायनात बोलता है। क्या कह रहा है? इतराने की जरूरत नहीं। ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन। इतराओ नहीं, अल्लाह इतराने वालों को, बोलो ना भाई, पसंद नहीं करता। किसके लिए आयत उतरी है? बस ये समझ, कुरान को समझना इसलिए जरूरी होता है। किसके लिए उतरी आयत? ये आयत कारून के लिए उतरी है। कारून खजाने वाला था, कारून हुकूमत वाला था, कारून उस वक्त में सत्ता पर काबिज था, कारून उस वक्त में गुरूर वाला था। सत्ता हाथ में आते ही तो इंसान जो है चौकड़ियां भूल जाता है ना अपनी। जैसे आजकल हमारी हुकूमत चौकड़ियां भूली हुई है, वो यूं समझ रही है अब कयामत तक ये तख्त को ताज तुम्हारे हाथ में रहेगा। हाँ नहीं नहीं, ओ किसी गरीब की उठेगी, तख्त का फलक हो जाएगा। वकील कर अय्याम मुताबिलुहा बैनन नास, दिन कभी भी यकसा नहीं रहा करते, दिन बदलते बदलते रहते हैं। ये हुकूमत भी इंशाअल्लाह, चुप क्यों बैठे हो? कभी मुकदमा कायम हो जाए, मुकदमा कायम होगा तो मेरे को होगा, तुम क्यों डर रहे? नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मदरसा इस्लामिया, मदरसा सिराजुल उलूम, मुफ्ती रईस अहमद साहब, हज़रात उलमाए किराम। मैं कहता हूं कि अल्लाह का निजाम है ये। तो अल्लाह ने बदला। 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, हुकूक मारे होंगे, जुल्म किया होगा, गलतियां चूक हुई होंगी, अल्लाह ने बदल दिया। बदला कि नहीं बदला? अब जब जुल्म बढ़ेगा गरीबों पर, यतीमों पर, किसानों पर, मिस्कीनों पर, काफिरों पर, हर तबके का आदमी जब दुखी हो जाएगा, अल्लाह के पास आवाज पहुंचेगी। फैसले कहां से आते हैं भाई? अरे बोलते क्यों नहीं बोल रहे? डर के क्यों बोल रहे हो भाई? पैसे कहां से उतरते हैं? अमालुकुम। इसलिए मैं लोगों से कहता फिर रहा हूं, गली गली, पूछा गाँव, लोगों बिल्कुल तैयार हो जाओ, अमाले सालिया करो, जिना छोड़ो, सूद छोड़ो और चूहे से भाग रहो, अमाल ठीक करो। लोगों मुजाहिद बन जाओ, सखी बन जाओ, और अपने बच्चों को सखी बनाओ, और फिर खड़े हो जाओ कुर्बानी लेकर। कुर्बानियां खुदा की कसम तख्त पलटा करती हैं। कारून खजाने वाला था, पैसे वाला था, आयत इसके लिए उतरी, ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन। इतराओ मत, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। ये तो होगी दुनियादार लोगों की, हुकूमत वाले लोगों की। यहां क्या कहा? कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। यहां कहा जा रहा इतराओ। किसको कहा जा रहा भाई? प्रधान जी को? किसको कहा जा रहा? तुम्हें कुछ नहीं पता भाई, है? ये देखो किसको कहा जा रहा है? बिलाल, तुम भी समझाते नहीं ना लोगों को भाई बिलाल साहब।
हाफिज कुरान को कहा जा रहा है। किसको कहा जा रहा है? जो हाफिज पढ़ रहे हैं, जो हाफिज पढ़ा रहे हैं, फल यक़रअू, उनको इजाजत है कि वो इतराए, इनको कहा जा रहा है। इससे ज्यादा इंजीनियरों को इतराने से मना किया है, डॉक्टरों को इतराने से मना किया है, और फलसफियों को इतराने से मना किया है, और तमाम लोगों को मना किया गया है। इस टीम को अल्लाह ने इजाजत दी है कि ये सीना तान के सब रास्ते में चल सकते हैं, क्योंकि इनके सीने में अल्लाह का कुरान है। कितने खुश नसीब होंगे वो माँ बाप, और रब की कसम इनके पैर धो के पी लो जिन्होंने तुम्हारे सरों पर कयामत के दिन ताज का इंतजाम कर दिया। इनके पैर धो के पी लो, और रब की कसम वो माँ, वो दादा, अगर इनके बदले में मदरसे को की सभी उतार के भी देने को सोचा सकता है। हाफिज ऐसे नहीं बनता। मदरसा यासीनिया, सिराजुल उलूम, हज़रत मुफ्ती रईस अहमद साहब, हज़रात उलमाए किराम, नारे तकबीर। ऐसे ही हाफिज नहीं बनता। मेरे साथ 350 बच्चे पढ़ते थे जब मैं हिफ्ज करता था। 350 से 300 में हाफिज बने। खुदा की कसम, बाज लोग ऐसे भी हैं जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, ईद में भी मुश्किल आते हैं, ऐसे भी है मेरे साथियों में। नहीं समझे आप? कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमऊन। बलाएं इनके पैरों में, कालीन कमजोर है, टाट फटी हुई है, पट्टियां नहीं है, लेकिन रब काबा की कसम, इनसे ज्यादा कीमती असासा तुम्हारे पास नहीं है। ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह का फजल है। इन्हें इतराने की इजाजत है। इनका बाप इतराए, इनकी फूफियां इतराए, इनकी खाला इतराए, इन पर पैसे खर्च करने वाली कमेटी इतराए। क्यों? अल्लाह ने उनको इतराने की इजाजत दी है। कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। वो आदमी जिंदा है। यासीन साहब के इंतकाल को कितने दिन हो गए? मियां साहब के कितने दिन हो गए? 42 साल हो गए। कितने हो गए भाई? आज भी यासीन जिंदा है। आज भी यासीन, हाँ, जिंदा वो है जो जिंदो जैसे काम करे। हर साल, हर हफ्ते, हर महीने लोग और पूरी टीम और बच्चे उसको याद करते कि नहीं करते? वरफाना लका ज़िक्रक, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है जो अल्लाह ने अता की है। मैं उत्तराखंड स्टेट वक्फ बोर्ड में सरकार में वाइस चेयरमैन बना दिया, और मुझे लेके कलियर शरीफ से, मंगलोर से और गढ़वाल के तमाम मज़ारों की मस्जिदों की जिम्मेदारी सौंप दी। मैंने कई मरतबा मेरे दौर में कलियर शरीफ का गुल्लक खुलवाया। मैं खुलवाता था, प्रशासन वीडियो बनाता था, तो एक मरतबा गुल्लक खुलने में तकरीबन एक गुल्लक से 35 लाख रुपए निकलते थे। कितने? हाँ, 35 लाख। मैंने जब गुल्लक खुलवाया तो मैंने अलग अलग मुल्कों की करेंसी अलग अलग करवाई। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, तकरीबन 17 मुल्कों की करेंसी वहां गुल्लक में मौजूद थी। कितने मुल्कों की? जिन्नात तो नहीं घेर के गए, फरिश्ते तो नहीं घेर के गए, कौन लेके आए? इंसान ने, हम तुम लेके आए। इसका मतलब ये हुआ कि वहां उनसे मोहब्बत करने वाले उनको जिंदा रखे हुए हैं। आज भी किसी जिंदे के बाद 17 मुल्कों की करेंसी नहीं होगी जो इस मरने की गोद में लोगों ने डाल रखी है। ये है जिंदगी। 650-700 साल उसकी मौत को हो गए। हर साल लोग उसको जिंदा समझ के सलाम करते हैं कि नहीं करते भाई? अरे बोलो ना, यूं करते हैं कि नहीं करते? ये है जिंदगी। खुदा की कसम, ये जिंदा रहने वाली टीम है। कितने वाकयात ऐसे हैं कि हाफिज कुरान को 10-20 साल के बाद उसकी कब्र खुली, उसका कफन भी मैला नहीं हुआ। कितने वाकयात है कि कफन भी मैला नहीं हुआ। कोई आदमी मजमे में ऐसा नहीं बता सकता कि मैंने कुरान पर खर्च किया हो, मैं गरीब हो गया हूं, रब काबा की कसम वो मेरा कॉलर पकड़ सकता है। कोई आदमी ऐसा नहीं खड़ा हो सकता जो यूं कहे कि मैंने अल्लाह की राह में लाख खर्च किए हैं, मुझे रूहानी सुकून न मिला हो। कोई आदमी ये नहीं बता सकता कि मैं रब के लिए 2
मुझे रब ने उसका बदला न दिया हो। एक आदमी नहीं बता सकता। हाँ, ये जरूर बताएगा कि मैंने 25 लाख रुपए इलेक्शन पे पहले तो दिए थे, हार गया। मैंने कैबिनेट के मंत्री को दिए थे, भूल गया। मैंने जज को दिए थे, बात खत्म हो गई। मैंने प्रधान को, एमपी को तोला था, कुछ भी नहीं हुआ। ये जरूर मिलेगा, कारोबार में लगाए, नुकसान हो गया। ये ऐसा कारोबार है, वो रब काबा की कसम, ये ऐसा बिजनेस है, इसमें जीते तो जीते, इसमें हारे तो भी जीत गए। अगर आपके पैसे से कोई बच्चा हाफिज कुरान हो गया तो भी आप रहमतों के खजानों के मुस्तहिक हो गए। और जिस बच्चे की आपने अपने बाप दादाओं को तरफ से पढ़ा दिया, उसकी कब्र नूर से मुनव्वर, मैं इसके ऊपर कसम खा सकता हूं। और अगर वो किसी वजह से रह गया, मगर तब भी आप जीते हुए हैं, इसलिए कि वो तालिब इल्म था और तालिब इल्म के पेट में, मुदर्रिस के पेट में आपका पैसा चला गया। और रब की कसम, आपसे ज्यादा कुछ नसीब और आपके माल से ज्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए कि पढ़ने पढ़ाने वाले आपके घर से खाना खा रहे हैं, आपकी कमाई से खाना खा रहे हैं। हाँ, मगर इसमें बहुत कम लोग हैं। मेरा यहां से लेके और लंदन तक का अल्हम्दुलिल्लाह है, कोई पैसे नहीं देता। पैसे तो वही देता है जिसको रब सीने में डालता है, जिसको रब कबूल करता है, जिसको दाइया आसमान से उतरता है। कभी कभी गरीब औरतें, ऐसे ऐसे लोग खुदा की कसम बाजी ले जाते हैं कि हम सोचते रह जाते हैं, बड़े बड़े मालदार बैठे रह जाते हैं। और लोगों, हाँ, लिहाजा फलियामलिल आमिलून, यही काम है करने का, यही काम है करने का। क्यों? ये दुनिया फना हो जाएगी, ये चमन उजड़ जाएगा, ये चमन उजड़ जाएगा, आसमान को लपेट के रख दिया जाएगा, जमीन तोड़ दी जाएगी और कब्रें खोल दी जाएंगी और पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़े फिरेंगे। हाँ, ये तो दुनिया में अभी हो रहा है। इधर समा उनफतरत व इधर कवाकिब उनतफरत व इधर बिहार फज्जरत व इधर खुमार वाखिरत अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। जो तुमने आगे पहुंचा दिया, जो तुमने कुरान पर खर्च कर दिया, जो गरीब बच्चों के सर पर लगा दिया, जो तुमने कुरान पर लगा दिया, अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। कयामत किसी को नहीं छोड़ती। लोगों, हिंदुस्तान तो बहुत पीछे। अल्लाह हमारे उन भाइयों को सब्र जमील अता फरमाए। जोर से बोलो, अल्लाह नीमत बदल अता फरमाए। बोलो, जोर से बोलो, तुम्हारे रोटी नहीं खाती क्या भाई? अल्लाह तुर्की और सीरिया के मुसलमानों को सब्र अता फरमाए। एक झटका आया, हाँ, और दुनिया को ऑटोमेटिक कहने वालों और मुख्तलिफ भगवानों को सलाम करने वालों और दुनिया में 3 खुदाओं के तस्लीम और मानने वालों, आओ, किस रब ने इलाही जमीन को, किसने फाड़े पहाड़ों को, किसने बराने डाली वहां तमाम रोडों के अंदर, किसने तुर्किया के शहर को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया, वही एक रब है। इलाहुम्मा अल्लाह, इलाहुम्मा अल्लाह। क्या है कोई अल्लाह के अलावा जो ये कर सकता हो? हाँ हाँ, तुर्किया तो टेक्नोलॉजी का बादशाह है, बहुत आगे हिंदुस्तान से। एक झटका लगा और तुर्किया का घर नहीं, मोहल्ला नहीं, गांव नहीं, पूरा शहर कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया। खानदान में बास खानदान ऐसे जिसमें बच्चा भी बचा, बाद ऐसे हैं कि सिर्फ एक बच्चा बचा, बाद ऐसे हैं कि ऐसा नौमौलूद बच्चा बच गया कि बता नहीं सकता कि खानदान का नाम क्या था। एक खानदान पूरा मरने में बदल गया। मां पर जो जोर पड़ा, मां का जो दम निकला, उस दम निकलने में बच्चे की पैदाइश हो गई। लोगों ने उठाया, मां मर गई। वो बच्चा क्या बताएगा मेरी मां कौन थी, खानदान का नाम क्या था? ये निशान इबरत है। खुड्डे को रचना के लोगों और नौजवान बच्चों, अभी टाइम है, अभी दरवाजे तौबा के खुले हुए। अभी सिराते मुस्तकीम की राहें हमवार है। जो चाहे फमन जो चाहता है वो आए। रब बाहें फैलाए खड़ा है, रब बाजू लेके खड़ा है कि जमीन से लेके आसमान तक खले के बराबर गुनाह लेके आ, समंदर के झागों के बराबर गुनाह लेके आ। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, आ मेरी तरफ आ, मैं तुझे कबूल करने के लिए तैयार खड़ा हूं। तौबा की जरूरत है।